So hello everyone. Today we are going to see about the selection sort method. The last video we have already gone through the bubble sort method. We have seen bubble sort method, how bubble sort method will work, how we can write down the program for bubble sort method. All these things we have already studied. Now today we are going to see about the selection sort method. So selection sort method is one of the sorting techniques. Like bubble sort, selection sort, it is also one of the sorting technique in which we are going to arrange the data in a proper manner. It means that either we are going to arrange the data in ascending order or we are going to arrange the data in descending order. We know what I mean by ascending and descending. So, what is the main fundamental idea for selection sort method? So, in case of a bubble sort method, what we did in bubble sort method, every element is compared with its adjacent element. हर एक एलिमेंट उसके adjacent एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है. According to that ascending or descending order, we are going to exchange the value. Now, in selection sort method, what we are going to do in selection sort method, in every step, the step number element should be targeted. For example, suppose if we are having the elements 22, 0, minus 90, 89, and 70. Suppose these are the elements. So suppose the elements are given 22, 0, minus 90, 89, and 17. So in step number 1, whatever be the step number, that element should be targeted. It means that suppose if we are on the step number 1, हम लोग step number 1 पे है, ठीक है. Now what is the first element? First element is 22. First element is 22. This one is first, this one is second, this one is third one, this one is fourth element, and this one is fifth element. Okay, suppose the 5 elements are given. Okay, now how the selection sort will work? The very first element is 22. So step number 1 में हमारा target element कौन सा रहेगा? Our target element should be the step. First element should be targeted. That is 22 is the target element. Now what we will do? Compare your first element with its all the adjacent element. In bubble sort, you are comparing each and every element with its adjacent element. हर एक एलिमेंट उसके बाजू वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होता था इन केस ऑफ अ बबल सॉर्ट. सपोज इस तरीके से एलिमेंट है, ये आपका एक एलिमेंट है, दिस वन इज द सेकंड एलिमेंट, दिस वन इज द थर्ड एलिमेंट, आफ्टर दैट दिस वन इज द फोर्थ एलिमेंट, लाइकवाइज. सो बबल सॉर्ट में क्या था कि फर्स्ट कंपेयर विद सेकंड, देन सेकंड कंपेयर विद थर्ड, देन थर्ड कंपेयर विद फोर्थ. इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते थे. आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद एट द लास्ट पोजीशन वी विल गेट द हाईएस्ट एलिमेंट इन केस ऑफ अ असेंडिंग ऑर्डर. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हाईएस्ट हमारे लास्ट लोकेशन पे हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा, सबसे लेस एलिमेंट मिलेगा. सो नाउ इन सिलेक्शन सॉर्ट व्हाट वी विल डू इन द स्टेप नंबर 1, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी टारगेटेड. आपका पहला एलिमेंट टारगेट रहेगा. इट इज कंपेयर विद इट्स ऑल द एडजेसेंट एलिमेंट. जितने भी एलिमेंट है इसके एडजेसेंट में सब एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा. दैट मीन्स इन सिलेक्शन सॉर्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सपोज इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, देन सेकेंड है, देन थर्ड है, देन फोर्थ एलिमेंट है, लाइकवाइज इस तरीके से आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं. नाउ हाउ इट विल एग्जीक्यूट? फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर विद सेकेंड. So in selection sort, in the first step, first element should be targeted. Compare with its all the adjacent element. It means that suppose the element are given likewise, first element है, second element है, third element है, fourth element है. So first element should be targeted in the step number 1. So first element compare with the second element. Then again first element compare with the third element. Then again first element compare with the fourth element likewise. ठीक है. बबल सॉर्ट में क्या था? फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर विद सेकंड, सेकंड विद थर्ड, थर्ड विद फोर्थ, लाइकवाइज टिल द एंड हम लोग जाते हैं.
But in case of selection sort, if we are executing the step number 1, so in step number 1, first element is targeted. It is compare with all the adjacent element, जितने भी adjacent element होंगे, all the adjacent element के साथ compare करेगा. That means first with second, first with third, first with fourth, first with fifth, likewise. So in second step, फिर first step execute होने के बाद what output we will get? Once we finish with the step number 1, we will get the smallest element at the first position. If we are doing the if you are sorting the array in the ascending order, अगर हम लोग ascending order में करते हैं तो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट क्या आएगा आपका, फर्स्ट पोजीशन पे आपको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा. वही अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो सो यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू ऑन द फर्स्ट पोजीशन. So now suppose if you're talking about a second step, ये first step था. So now second step में क्या होगा फिर? In second step our second element should be targeted. अभी first का काम हो गया, you have to skip the first element. Now in the second step you have to target with the second step. Second step में क्या होगा आपका? Second element targeted रहेगा. It is compare with all the adjacent element, जितने भी उसके adjacent होंगे सबके साथ compare होगा. That means second with third, second with fourth, second with fifth, second with sixth, likewise. Now in third step, third with fourth, third with fifth, third with sixth, likewise. In fourth step, fourth with fifth, fourth with sixth, fourth with seventh, likewise. That means one by one हम लोग का एक एलिमेंट सॉर्ट आउट होते चलेगा. We will see one example. So see, now it's a simple example of selection sort. Suppose the 5 elements are given to you. The name of the array is data. So data 0 पोजीशन पे 3 है, डेटा 1 पोजीशन पे 12 है, डेटा सेकंड पोजीशन पे 7 है, डेटा थर्ड पोजीशन पे 10 है, डेटा फोर्थ पोजीशन पे 5 है. वी आर स्टार्टेड विद 0 तो 4 तक चलेगा, 1 से स्टार्ट किया होता तो 5 तक चलेगा, राइट. नाउ in the first pass, in the first step, the pass is also called as a step. In the very first pass, the first element compare with the second element. First element will be compared with the second element, and 3 with 12. 3 is already smaller than 12, so there is no change. 3 already 12 से छोटा है, no change आएगा. Now again 3 compare with 7. So now again check 3 को अगर मैं 7 के साथ compare करता हूँ, 3 already smaller than the 7. Again there is no change. Now again 3 compare with 10. That means third element. अगर 3 को मैं 10 के साथ कंपेयर करता हूं, दैट मीन्स नो चेंज बिकॉज 3 ऑलरेडी 10 से छोटा है, नो चेंज. नाउ अगेन 3 कंपेयर विद द लास्ट एलिमेंट. लास्ट एलिमेंट क्या है? फिफ्थ है. 3 को अगर मैं 5 से कंपेयर करता हूं, अगेन देयर इज नो चेंज. दैट मीन्स इटसेल्फ 3 इज योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट. व्हाट वी डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कंपेयर विद एंड 3 विल बी ऑन द 0th पोजीशन. 3 compare with the first location, 3 compare with the second location, 3 compare with the third location, 3 compare with the fourth location. सारे लोकेशन के साथ कंपेयर कर लिया. आफ्टर दैट वी विल गेट 3 as the smallest element. Okay, now the step number 1 is over. Now we will see the step number 2. So in second step we are on the step number 2. आपका step number 2 है, that means आपका टारगेट एलिमेंट कौन सा है? सेकेंड स्टेप. दैट मीन्स आपका ये सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका 1. दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन आपका 0 है, सेकंड पोजीशन क्या होगा 1 होगा, थर्ड इज 2, फोर्थ इज 3 एंड फिफ्थ इज 4 बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद 0. ओके, नाउ इन द सेकंड स्टेप सेकंड एलिमेंट इज टारगेटेड. सो कंपेयर. अभी फर्स्ट को हमको छोड़ देना है, 0th पोजीशन पे जो वैल्यू ऑलरेडी है वो सॉर्टेड में आ चुका है. ठीक है, सो वी हैव टू स्किप दैट वैल्यू. ठीक है, वी डोंट कंसीडर इन द सॉर्टिंग. ओके, नाउ कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट. 12 विद 7. अगर मैं 12 और 7 को कंपेयर करता हूँ, सो 12 इज ग्रेटर दैन 7. सो 7 12 की जगह जाना चाहिए और 12 7 की जगह जाना चाहिए. देखो यहाँ पे 7 ऊपर आया है और 12 नीचे गया है. 12 7 ऊपर आया, 12 नीचे गया. ठीक है, नाउ अगेन 7 कंपेयर विद द नेक्स्ट एलिमेंट. पहले यानी फर्स्ट लोकेशन का वैल्यू सेकंड के साथ कंपेयर हुआ, फिर अभी फर्स्ट लोकेशन का वैल्यू थर्ड के साथ कंपेयर होगा. दैट मीन्स 7 कंपेयर विद 10. सो 7 को अगर मैं 10 से कंपेयर करता हूँ, दैट मीन्स 7 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन 10. ठीक है, so that means 7 छोटा है 10 से, so there is no change. Okay, so now again 7 compare with the last element. That means we are going to compare 7 with the last element. That means we are comparing 7 with the last element. That means 7 with 5. So 5 is already smaller than the 7 element. ठीक है, that means we have to shift. 5 कहाँ पे जाएगा? 7 की जगह पे जाएगा और 7 कहाँ पे जाएगा?
5 की जगह जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 आएगा और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 7 जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, नाउ इन द थर्ड स्टेप, ठीक है, अगर हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं, सो सी in third step. What are the elements? 3, 5, 12, 10 and 7. So we are on the third step. So third element should be targeted. So third मतलब 0 आपका फर्स्ट था, 1 आपका सेकंड था, थर्ड आपका 2 था, that means 12 is the target element. ठीक है, so now compare 12 with adjacent. कौन सा पहला adjacent? 10 के साथ. 12 with 10, so 10 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. 12 कहाँ आएगा? नीचे जाएगा. That means 10 ऊपर आया, 12 नीचे आया. ठीक है, so now 10 विथ नेक्स्ट एडजेसेंट, पहले एक बार 10 12 12 को हमने 10 के साथ कंपेयर किया, ठीक है, सो 10 ऊपर गया, 12 नीचे आया, देन अगेन सेकंड पोजीशन का वैल्यू हम लोग लास्ट पोजीशन के साथ कंपेयर करेंगे, दैट मींस 10 विथ 7, 10 विथ 7 किया, दैट मींस 10 को अगर मैं 7 के साथ कंपेयर करता हूं तो 7 10 की जगह जाएगा और 10 7 की जगह जाएगा, दैट मींस यहाँ पे आपका 7 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 आ गया। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 4, ठीक है, सो व्हाट आर द वैल्यूज? 3 5 7 3 5 7 12 and 10. So see, now in the fourth pass, fourth element should be targeted, that means 12 is targeted. Now compare with its adjacent element 12 with 10. So 12 को मैं 10 के साथ अगर कंपेयर करता हूँ, so 10 12 की जगह जाएगा और 12 10 की जगह जाएगा, that means ये स्वैप हुआ एलिमेंट। ठीक है, so finally all these steps are executed, ठीक है, and we will get the array in the sorted manner. So how many steps are required to sort out the data using selection sort method? So in this case we are having 5 elements, so we require the 4 passes, we require the 4 steps. That means if you are having 100 data, we require 99 steps. Suppose if you are having n data, अगर मेरे पास n data है, if you are having n values हमारे पास है, so we required how many steps we required? We required n minus 1 step. We required n minus 1 step. So likewise we are going to sort out the data using the selection sort method. ठीक है, simply what we did, हमने जो भी elements दिए हुए हैं, ठीक है, so first step में क्या होगा? पहला element target रहेगा, compare with all the adjacent elements, first with second, first with third, first with fourth, first with fifth, like that. In the second step, second element targeted, second with third, second with fourth, second with fifth, second with sixth, like that. थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड कंपेयर विथ फोर्थ, थर्ड विथ 5, थर्ड विथ 6, लाइकवाइज। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? डेटा का सॉर्टिंग करते हैं। वी विल सी द प्रोग्राम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। So hash include stdio.h, hash include conio.h, void main, these are the 3 common statement. After that I have taken one array name as arr with the size is 50. I have declared the array with the size is 50. I have taken 2 variable I, j, temp and dimension. I'm using for loop. So in for loop I'm using 2 variables I and j. After that I have taken temp variable because we are doing the swapping concept. We are doing the swapping of 2 variables. We are doing the swapping of 2 data elements. After that dimension is nothing but the size, or we can say for how many elements you want to perform the selection sort method, that means the dimension. You can also take the size of the array also. Okay? After that I have passed the message, enter the dimension, that means um, how how many number you want to take into the processing for selection sort, that means कितने number पे आपको selection sort apply करना है, that means I have to take the dimension. After that we will read the value of the dimension. User will enter the value from the keyboard, that value will stored into the dim variable. Dimension में आपका जो भी आप size enter करोगे वो dimension में stored हो जाएगा. After that enter the array elements. I have printed one message, enter the array element. User को array element enter करने हैं, ठीक है, कितने element enter करने हैं? जितनी dimension होगी. Suppose if I say 10, so I have to enter the 10 elements. Suppose user say 20, सबको 20 एलिमेंट्स एंटर करने पड़ेंगे. सो जो आप एलिमेंट्स एंटर करोगे वो एप्रोप्रिएट वेरिएबल में, वो एप्रोप्रिएट लोकेशन में जाकर स्टोर होना चाहिए. उसके लिए हम लोग स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं. अब ये स्कैनफ स्टेटमेंट अगर मैंने बोला 20 एलिमेंट्स के लिए मुझे सॉर्टिंग परफॉर्म करना है, सो वी आर नॉट राइट डाउन 20 टाइम्स स्कैनफ स्टेटमेंट, सो वी हैव टू राइट डाउन द स्कैनफ स्टेटमेंट ओनली वंस. एक ही बार हम लोग लिखेंगे
and we have to put that scanf statement into the loop. So I have taken one loop for I is equal to 1, I less than equal to dimension I plus plus एक for loop ले लिया. ठीक है, कहाँ तक चलेगा? जब तक I का वैल्यू डायमेंशन से कम या फिर इक्वल नहीं होता है. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है. 1 टू डायमेंशन. दैट मीन्स अगर मैंने 20 बोला तो आपका ये लूप 20 टाइम्स चलेगा. ठीक है, मैंने अगर 10 बोला तो 10 टाइम्स चलेगा. आफ्टर दैट सी, so scanf statement. So scanf statement is लिख दिया scanf percentage address of array of I. That means when I is equal to 1, तो जो आप पहली वैल्यू एंटर करोगे ARR of 1 में जाके स्टोर हो जाएगी. When I is 2, I जब 2 हो जाएगा तो ये ARR सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड वैल्यू जाएगा. When I is 3, तो थर्ड पोजीशन पे आपका थर्ड वैल्यू जाएगा. When I is 4, तो फोर्थ पोजीशन पे आपका फोर्थ वैल्यू जाएगा. When I is 5, so फिफ्थ पोजीशन पे आपका फिफ्थ वैल्यू जाएगा. टिल द डायमेंशन आपका ये लूप चलते रहेगा. दैट मीन्स आप जो भी वैल्यूज एंटर कर रहे हो सारी वैल्यू आपकी अरे में जाके स्टोर हो जाएगी. आफ्टर दैट वी कैन सी द लॉजिक. सो we have seen how your selection sort will work. So after reading the values from the user, यहाँ तक आपके पास यूजर ने जो भी अरे के एलिमेंट्स थे आपके पास अरे के एलिमेंट्स आ चुके हैं. नाउ यू हैव टू परफॉर्म द सॉर्टिंग. So that first for loop for I is equal to 1, I less than equal to dimension I plus plus. You can write down I less than dimension also because we require the n minus 1 step. Okay. That very first loop for I is equal to 1, I less than dimension I plus plus, it is used for the number of steps. When I is equal to 1, जब I is equal to 1 है, so in very first step, what we are going to do? In the first step, first element compare with second, first with third, first with fourth, first with fifth, likewise. दैट मीन्स जब आपका I इज इक्वल टू 1 होगा तो आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा. लेकिन स्टेप नंबर जब 1 होगा तो उसके अंदर भी उसके सब स्टेप्स है. बिकॉज आपका स्टेप नंबर 1 होगा व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग ऑन स्टेप नंबर 1. इन स्टेप नंबर 1 फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर विद सेकंड, फर्स्ट विद थर्ड, फर्स्ट विद फोर्थ, फर्स्ट विद फिफ्थ, लाइकवाइज. दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड वन मोर फॉर लूप. So I have taken one more for loop for j is equal to I plus 1. Why I have taken I plus 1? Second loop मैंने I plus 1 से start किया हुआ है. Why? Because in step number 1 target element is 1. स्टेप नंबर 1 में पहला एलिमेंट टारगेट है. उसके बाजू वाले जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट होंगे सबके साथ आपको कंपेयर करना है. दैट मींस फर्स्ट विद सेकंड, फर्स्ट विद थर्ड, फर्स्ट विद फोर्थ, लाइकवाइज. दैट मींस I1 होगा तो j आपका कहां से स्टार्ट होगा? I plus 1 से स्टार्ट होगा. दैट मींस जब I इज इक्वल टू 1 होगा तो j का लूप आपका 2 से स्टार्ट होगा यानी कंपैरिजन सेकंड से स्टार्ट होगा. I2 होगा तो कंपैरिजन थर्ड से स्टार्ट होगा. I3 होगा कंपैरिजन फोर्थ से स्टार्ट होगा. I4 होगा कंपैरिजन फिफ्थ से स्टार्ट होगा. लाइकवाइज इसलिए सेकंड फॉर लूप जो स्टार्ट हुआ है j इज इक्वल टू I plus 1, j लेस देन इक्वल टू डायमेंशन j प्लस प्लस. तो ये लूप जो चलेगा j लेस देन इक्वल टू डायमेंशन तक चलेगा. नाउ when I is equal to 1 and j is equal to I plus 1, that means I is equal to 1 है तो j कितना हो जाएगा? I plus 1, 1 plus 1 2, j कितना हो जाएगा? 2. So we have to compare ARR of 1 is greater than ARR of 2. That means first position की वैल्यू ग्रेटर है क्या सेकेंड पोजीशन से. ठीक है, that means first compare with second. जब I 1 है तो j कितना कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से. So I का वैल्यू 1 है. देखो जब हमारा कंपैरिजन हो रहा है तो I सेम ऑलवेज. ठीक है, j आपका चेंज हो रहा है. जब I इज इक्वल टू 1 रहेगा तो j कैसे वैरी होगा? j is 2, j is 3, j is 4, j is 5, likewise till the dimension. Okay, now ARR of 1 is greater than array of 2. array of 1 greater than array of 2 है क्या? होगा. तो आपका ये एक्सचेंज का लॉजिक है. temp is equal to ARR of I, ARR of I is equal to ARR of j, ARR of j is equal to temp. इससे क्या हो जाएगा? आपकी दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी? स्वैप हो जाएगी. नाउ अगेन j is incremented by 1. नाउ j अभी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. पहले j कितना हुआ? 2 था. अभी j कितना हुआ? 3 हुआ. देन अगेन चेक 1, दैट मींस array of 1 greater than array of j. j कितना हुआ? 3 हुआ. दैट मींस 1 कंपेयर विद 3. array of 1 इज कंपेयर विद द array of 3. दैट मींस पहले आपने फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू सेकंड के साथ कंपेयर किया. अभी फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे. If the first value is greater than the second value, so we have to swap the value. अगर नहीं होगा तो as it is रहेगा. j प्लस प्लस होगा, ये is incremented by 1, तो j भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ आपका फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू फोर्थ पोजीशन के वैल्यू के साथ वो चेक करेगा. लाइकवाइज एवरी टाइम व्हेन I इज इक्वल टू 1 तो नीचे का j आपका डायमेंशन तक वैरी होगा, उतने टाइम्स आपके कंपैरिजंस हो गए. ठीक है, व्हेन I इज इक्वल टू 2 तो आपका j 3 से स्टार्ट होगा, वैसे आपका कंपैरिजन स्टार्ट होगा. इस तरीके से आपके दोनों लूप चलेंगे. आफ्टर दैट फाइनली आपका अरे सॉर्टेड में आ जाएगा. सॉर्टेड में अरे आने के बाद वी हैव टू प्रिंट द अरे.
आई हैव प्रिंटेड वन मैसेज सॉर्टेड अरे इज, फिर इसके नीचे मैं एक अरे प्रिंट कर दूंगा, अरे अरे में जो भी वैल्यूज अभी आई हुई है उस वैल्यूज को मैं प्रिंट करूंगा। सो प्रिंट करने के लिए अगेन एक फॉर लूप लगा है, ठीक है। सो हमेशा जब भी हम लोग को वैल्यूज अरे की प्रिंट करनी हो या फिर वैल्यूज हम लोग को इनपुट करनी हो, सो वी रिक्वायर्ड अ फॉर लूप। सो फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन डायमेंशन आई प्लस प्लस, और मैंने अरे ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया। फिर आई इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू प्रिंट होगी, आई 2 तो सेकंड पोजीशन का वैल्यू प्रिंट होगा, आई 3 तो थर्ड पोजीशन का वैल्यू प्रिंट होगा। लाइकवाइज ये आपका लूप चलेगा और फाइनली आपके अरे की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, now so likewise we are going to execute the selection sort method. Now we will see the insertion sort method. So see, again in bubble sort what we did, first element compare with second, second with third, third with fourth, fourth with fifth. Likewise in selection sort what we did, first come in the first step, first element should be targeted, compare with all the adjacent element, first with second, first with third, first with fourth. Likewise अभी now we can see the insertion sort method, ठीक है। we already aware about the well-known game that we all are used to for this particular game, that means arranging the deck of cards, ठीक है। कार्ड्स का गेम सभी लोगों ने खेला है। सो हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज दैट कार्ड, सो well-known example for insertion sort is arranging the deck of cards. So insertion sort it is one of the internal sorting techniques. Insertion sort भी एक sorting technique है जिसके थ्रू हम लोग अरेज के डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करते हैं। So insertion sort is a sorting algorithm where the array is sorted by taking one element at a time. By taking one element at a time. The principle behind insertion sort is to take one element, iterate through the sorted array and find its correct position in the sorted array. Okay, and the well-known example is arranging the deck of cards. We'll see through examples. Okay. See. For example, suppose the elements are given to you. इस तरीके से आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं। नाउ फर्स्ट पोजीशन पे आपका 9 है, सेकंड पे आपका 7 है, देन सॉरी वी हैव टू स्टार्ट विद 0। ओके, 0 पे आपका 9 है, देन फर्स्ट पे आपका 7 है, देन दिस इज द सेकंड लोकेशन, देन थर्ड लोकेशन, देन दिस वन इज द फोर्थ लोकेशन, देन दिस इज फिफ्थ लोकेशन, दिस वन इज सिक्स्थ लोकेशन and this one is the seventh location. So how many total number of values? Total number of values are 8. We have started with 0. हमने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया है एंड 7 तक गए हम लोग, दैट मीन्स टोटल एलिमेंट्स आर 8. टोटल एलिमेंट्स आर 8. नाउ हाउ वी आर परफॉर्मिंग द इंसर्शन सॉर्ट मेथड, हम लोग इंसर्शन सॉर्ट मेथड कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, सो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सपोज द एलिमेंट आर गिवन लाइकवाइज। अगर इस तरीके से आपके पास एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है एंड ये फिफ्थ एलिमेंट है। सो इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म कैसे होता है, सपोज स्टेप 1 में हम लोग स्टेप नंबर 1 पे, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में। सो स्टेप नंबर 1 पे हमारा 0th पोजीशन का एलिमेंट जो होगा, ठीक है, दैट मीन्स स्टेप नंबर 1 में टारगेट योर फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट एलिमेंट टारगेट रहेगा, कंपेयर विद द 0th एलिमेंट, कंपेयर विद द 0th एलिमेंट। क्या किया, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट एलिमेंट टारगेटेड था, कंपेयर विद द 0th एलिमेंट। स्टेप नंबर 1 इज ओवर। वी हैव टू कंपेयर विद 0th एलिमेंट, दैट मींस हम लोग कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है या छोटा है, ठीक है। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, सो वी हैव टू स्टॉप द एलिमेंट। अगर पहला एलिमेंट आपका बड़ा है और दूसरा छोटा है तो आप क्या करोगे, स्टॉप करोगे। अगर नहीं है तो एज इट इज छोड़ दोगे। इन द सेकंड स्टेप, ठीक है, इन द सेकंड स्टेप व्हाट यू विल डू, सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप में सेकेंड एलिमेंट शुड बी टारगेटेड। सेकेंड स्टेप में आपका सेकेंड एलिमेंट टारगेट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंपेयर विद द 0th एलिमेंट, पहले 0th एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, पहले ये 0th एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा। अगर आपका पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरा एलिमेंट छोटा है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो एज इट इज, ठीक है। देन अगेन फॉर सेकेंड एलिमेंट कंपेयर विद द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। दैट मीन्स आपने पहले स्टेप में क्या किया, फर्स्ट कंपेयर विद 0th एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड एलिमेंट कंपेयर विद 0th एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट कंपेयर विद फर्स्ट एलिमेंट,
नाउ थर्ड में क्या करोगे फिर, थर्ड स्टेप में, देन थर्ड कंपेयर विथ जीरो, थर्ड कंपेयर विथ वन, थर्ड कंपेयर विथ सेकेंड, लाइक वाइज, इस तरीके से। नाउ फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ कंपेयर विथ जीरो, फोर्थ कंपेयर विथ वन, फोर्थ कंपेयर विथ टू, फोर्थ कंपेयर विथ थर्ड पोजिशन वैल्यू, लाइक वाइज। ठीक है, नाउ इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है, जीरो पोजिशन पे हमारा वैल्यू कौन सा है, 9 है। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है, 7 है। सो इन द स्टेप नंबर 1 हम लोग स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करिए, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हमारा पहला एलिमेंट टारगेट रहेगा, तो पहले एलिमेंट में क्या है, 7 है। सो कंपेयर 7 विथ जीरो लोकेशन एलिमेंट, जीरो पे क्या है, 9। सो कंपेयर फर्स्ट पोजीशन वैल्यू विद जीरो पोजीशन वैल्यू, फर्स्ट पे 7 है, जीरो पे 9 है, तो 7 9 की जगह जाना चाहिए, 9 7 की जगह जाना चाहिए। तो हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया, देखिए 7। ठीक है, नाउ ठीक है, यहाँ पे 7, ये दोनों को कंपेयर करना है, दीज आर द ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है हमारे पास, ये हम लोगों का स्टेप नंबर 1। ठीक है, सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप, सो 7 को अगर मैं 9 के साथ कंपेयर करता हूं, तो क्या हुआ, 9 7 की जगह गया, 7 9 की जगह आया, देखो ये स्वैप हो गया एक दूसरे के साथ। ठीक है, ना स्टेप नंबर 1 इज ओवर, आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद नाउ वी आर ऑन द स्टेप नंबर 2। अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई है, यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल स्टेप वाइज। ओके, नाउ इन द स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। ठीक है, सो स्टेप नंबर 2 में सेकंड एलिमेंट टारगेट रहेगा, मेरा सेकंड एलिमेंट का पोजीशन कौन सा, ये वाला है, ये है 6 इज टारगेटेड। कंपेयर फर्स्ट विद जीरो एलिमेंट, 6 को सबसे पहले मैं जीरो के साथ कंपेयर करूंगा, राइट में जीरो पे क्या, 7 है। कंपेयर 6 विद जीरो, तो 6 विद 7 को कंपेयर करो। 6 को अगर मैं 7 के साथ कंपेयर करता हूँ, तो 6 के 7 की जगह जाएगा और 7 6 की जगह जाएगा। यहाँ पे बीच में आपको एक एडिशनल और स्टेप लिखनी है। ठीक है, बिकॉज अभी सॉर्टिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, 7 9 और 7 के बीच होगा। पहले 6 को आपने 7 के साथ कंपेयर किया, नाउ 6 को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, 9 के साथ कंपेयर करोगे। 6 को आपने 7 के साथ कंपेयर किया, तो 6 7 की जगह गया और 7 6 की जगह आया। देन अगेन यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 कंपेयर विथ 9। सो 7 को अगर मैं 9 के साथ कंपेयर करता हूँ, तो 7 9 की जगह जाएगा और 9 7 की जगह जाएगा, लाइक वाइज। ठीक है, एक मैं सिंपली now see, suppose we are taking the example, suppose we are having the elements, suppose 34, then we are having 4, then we are having 5, then 66, then we are having 77. Okay, now suppose how many elements we are having, 1 2 3 4 and 5, we are having 5 elements, 5 एलिमेंट्स हम लोग के पास है। सो जीरो पोजीशन पे कौन सा वैल्यू रहेगा, 34 इज ऑन जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन पे आपका 34 है। उसके बाद आपका फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, आपका 1 है, सॉरी 1 पोजीशन पे आपका 4 है, सेकंड पोजीशन पे आपका 5 है, थर्ड पोजीशन पे आपका 66 है एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका 77 है। ठीक है, सो नाउ इन द स्टेप नंबर 1, ठीक है, हम लोग स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल दीस आर द वैल्यूज, these are the values now। स्टेप 1, सो इन स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 है, तो आपका कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट टारगेट रहेगा। सो कंपेयर 4 विथ जीरो एलिमेंट, आप किसको किसको कंपेयर करोगे, आप 4 को 34 से, यानी फर्स्ट एलिमेंट वाली वैल्यू को आप जीरो लोकेशन पे जो वैल्यू होगी उसके साथ कंपेयर करोगे। 4 विथ 34, 4 को अगर मैं 34 से कंपेयर करता हूँ, तो 34 बड़ा है 4 छोटा है, तो आप क्या करोगे, स्वैप करोगे। दैट मीन्स यहाँ पे 34 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह आपका 34 चले जाएगा, बाकी के एलिमेंट आपके एज इट इज 5 66 एंड 77। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 आपका हो गया। नाउ इन स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 2 पे क्या करोगे आप, स्टेप नंबर 2 पे, इन स्टेप नंबर 2 पे क्या है, आपका सेकेंड एलिमेंट टारगेट रहेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट आपका फर्स्ट टारगेट हो चुका है, अभी सेकेंड एलिमेंट टारगेट रहेगा। तो सेकेंड पे वैल्यू कौन सा है, 0 पे 4 है, 34 1 पे, 5 कहाँ पे, 2 पे, यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपको।
सो नाउ यहाँ पे अभी सेकंड स्टेप पे सेकंड एलिमेंट टारगेट रहेगा, सेकंड ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे आपका वैल्यू कौन सा है 5 है। सो अभी क्या करेंगे 5 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, जीरोथ वाली लोकेशन के साथ, यानी कंपेयर 5 विद 4। सो 5 को अगर मैं 4 के साथ कंपेयर करता हूँ तो नो चेंज, 4 ऑलरेडी छोटा है 5 से, ठीक है। सो नो चेंज आएगा, दैट मीन्स एज इट इज। सो आपका ये वाला वैल्यू तो एज इट इज हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका एज इट इज हो गया। नाउ आपने क्या किया, सेकंड पोजीशन की वैल्यू फर्स्ट के साथ जीरो के साथ कंपेयर कर ली। नाउ द फिफ्थ विल कंपेयर विथ 34, यानी अभी हमने क्या किया, सी हमने ये स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंपेयर विथ फिफ्थ विथ, हमने फिफ्थ को किसके साथ कंपेयर किया, सी इन द वेरी, अभी फिफ्थ हमने पहले 4 के साथ कंपेयर किया, ठीक है। फिफ्थ को मैं 4 के साथ कंपेयर करता हूं तो देर इज नो चेंज बिकॉज 4 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन द 5, नो चेंज आएगा। नाउ अगेन फिफ्थ विल कंपेयर विथ 34, ठीक है। अभी 34 के साथ कंपेयर करूंगा 5 को, सो देर इज चेंज। अभी ये दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा सो 34 की जगह 5 जाएगा, 5 की जगह क्या आएगा 34 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 है, सो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 34 आ जाएगा। सो लाइकवाइज यहाँ पे आपका 34 हो गया, ठीक है। यानी सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड एलिमेंट इज टारगेटेड, कंपेयर विद द जीरोथ एलिमेंट, देन सेकंड कंपेयर विद द फर्स्ट एलिमेंट, लाइकवाइज